میرے دوستو، انڈیا میں ایک پاگل بہت مشہور تھا۔ وہ سارا دن پیسے بانٹتا تھا، لوگ حیران تھے یہ پاگل ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کچھ تجربہ کیا، معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ وہ پاگل 3 الفاظ پڑھتا تھا اور اسے سفید داڑھی والا ایک بزرگ آ کر پیسے دے کر جاتا تھا۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے وہ 3 الفاظ اس پاگل سے معلوم کیے، جانتے ہیں وہ 3 الفاظ کون سے ہیں جو پاگل 27 رجب شب معراج میں پڑھتا تھا؟ اور وہ 3 الفاظ دنیا کے بڑے خزانے ہیں جسے سال میں ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پاگل سے یعنی کہ جو پاگل نے کچھ لوگوں کو یہ عمل بتایا تھا اور وہاں سے گھومتے گھومتے یہ عمل مجھ تک پہنچا ہے شب معراج 27 رجب کا، جس سے پڑھتے ہی غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے اس عمل کو تقریباً 2 سال پہلے شب معراج میں 27 رجب کو حاصل کیا۔ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر جب پہلی بار میں نے یہ عمل پڑھا، آپ یقین کریں، میں 3 ایسے الفاظ میرے دوستوں کمالات کرامات دیکھ کر اس کے میری عقل حیران رہ گئی۔ آپ جانتے ہیں، مجھے 2 سال پہلے جیسے ہی میں نے 27 رجب کو 2 سال پہلے جب یہ حسین گھڑی آئی تھی، میں نے یہ 2 الفاظ پڑھے، مجھے فوری طور پر میرا اپنا رشتہ دار بند مٹھی میرے دوستوں 21.5 لاکھ روپے دے کر چلا گیا۔ میرے دوستوں، یہ عمل کوئی بنا بنایا نہیں ہے، یہ انڈیا کا سب سے مشہور عمل ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے وہ 2 الفاظ بتاؤں گا تاکہ آپ بھی غیبی مدد کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں آتے ہوئے دیکھیں۔ جو بھی غریب ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ 27 رجب شب معراج کا جادوئی عمل ہے۔ یہ دنیا کے سب سے وہ طاقتور 3 الفاظ ہیں جو ایک ملنگ پاگل کی طرف سے بتائے گئے۔ ایسے میرے دوستو الفاظ جسے پڑھنے والا میں نے 2 سال پہلے یہ عمل تقریباً 800 سے 900 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ یہ عمل ایک ہی کام کرتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر دولت دیتا ہے۔ چھپڑ پھاڑ کر اگر پیسہ چاہیے، چھپڑ پھاڑ کر اگر نوٹیں چاہیے، نوٹیں اگر نوٹوں نے منہ پھیر لیا ہے، نوٹوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بہت دن ہو گئے نہ نوٹیں دیکھی نہ نوٹوں کے بندل دیکھے، تو آ جاؤ میرے غریبوں جلدی سے۔ یہ 3 الفاظ تنہائی میں بیٹھ کر شب معراج کی یہ رات یا دن کسی وقت بھی پڑھ لینا۔ میں آپ کو یہ الفاظ آپ کو ایسی ترتیب سے بتاؤں گا جو جینین ترتیب ہے، جو اس ملنگ سے لی گئی ہے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ جلدی سے یہ پڑھ لے وہ پڑھ لے تیرے کام بن جائیں گے۔ نہ، آپ اس عمل کو سنیں گے، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، آپ کہیں گے یہ کیسا وظیفہ ہے، اور خدا کی قسم اس عمل کے معجزات کمالات دیکھ کر آپ لوگ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اس عمل کے معجزات صرف 5 منٹ میں، 5 سے 10 منٹ میں یہ عمل اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو انتظار نہیں کروائے گا۔ وہ ملنگ جیسے ہی یہ 2 الفاظ پڑھتا تھا، اس نے خود بتایا کہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ، کوئی موکل اللہ کا بند مٹھیوں سے نوٹوں کے بنڈل دے کر جاتا تھا۔ میرے دوستو، یہ وہی عمل ہے۔ اب میں آپ کو وہ راز آپ کے حوالے کروں گا۔ تمام غریب جلدی جلدی آ جائیں۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، پھر دوسرا 2 الفاظوں کا 30 سیکنڈ آپ نے دینی ہے۔ پہلے 2 الفاظ پڑھنے ہیں، پھر تیسرا۔ اس عمل کے لیے 30 سیکنڈ لگتی ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہ منٹوں میں دولت برساتا ہے اور ساری زندگی انشاءاللہ بیٹھ کر کھاؤ گے۔ کہیں پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھتے ہی یہ پیسہ اتنا آئے گا کہ بڑی سے بڑی فیکٹری لگا لو گے، بڑے سے بڑے محل لے لو گے، بڑی سے بڑی گاڑیاں لے لو گے، لیکن پیسہ پھر بھی ختم نہ ہوگا۔ یہ الفاظ آپ دیکھیں، صرف سال میں ایک ہی بار پڑھ سکتے ہیں شب معراج میں۔ یہ دولت کے 3 خفیہ الفاظ ہیں جو آج سے پہلے نہ آپ کو بتائے گئے نہ آپ کو سنائے گئے۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے ان میں سے ایک آدھا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں پڑھا بھی ہو، لیکن اس عمل کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا۔ یہ غیبی خزانوں کی خفیہ چابی
आपके हवाले करने लगा हूँ तन्हाई में बैठकर। सबसे पहले एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तवज्जो ध्यान से मेरे गरीबों, फिर मुझे ना कहना कि ये वीडियो जल्दी जल्दी शेयर करना शुरू कर दो अपने उन गरीब बहनों भाइयों के साथ। सबसे पहले एक मर्तबा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ये तो आता है ना, या ये भी नहीं आता? बच्चों वाला आसान सा वजीफा है, पूरा अमल बच्चों की तरह आसान है। पढ़ोगे ना तो कहोगे ये तो बच्चों वाला अमल है। कमालात मोजज़ात देखकर आंखें भर जाएंगी, गैबी दौलत की बारिश देखकर आंखें भर जाएंगी। जिसको पैसों की जरूरत है, जिसके ऊपर कर्जा है, घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, मेरे गरीबों ये अमल ना छोड़ना। ये 5 से 10 मिनट में तुम्हारी तकदीर को बदलेगा। ये 5 से 10 मिनट में अपना काम दिखाएगा। तन्हाई में बैठकर देखो, तन्हाई में बैठकर सबसे पहले नंबर पर एक बार देखें, एक बार एक जुमला भी आपने देखें, एक एक जुमला समझना है। पहले मैं पहला वजीफा बताऊंगा, पहले नंबर वाला अल्फाज बताऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। 1 मिनट आप लोग इस अमल को अच्छी तरह समझ लें। एक आधी मिनट में इंशाअल्लाह पढ़ भी लेंगे। चाहे आप लोग शब मेराज की रात में पढ़ें, चाहे सुबह पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें, पाबंदी नहीं है। किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है, ना वक्त की ना जगह की, बस दिन की पाबंदी है। मेरे दोस्तों, अब आप किसी और दिन पढ़ेंगे देखें तो ये अमल असर ना करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शब मेराज की रात या दिन में, घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, मेरे दोस्तों पढ़ो तो सही। किसी चीज़ की कोई पाबंदी नहीं है। अब बहाने ना बनाना। अब किसी की देखें, अब किसी का कोई बहाना ना चलेगा। अब तुम्हारी एक भी ना चलेगी। अगर आज अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना है तो ये 3 अल्फाज ज़िंदगी में एक बार शब मेराज में लाजमी पढ़िएगा। अब आपने पहले नंबर वाला अल्फाज तवज्जो ध्यान से, पहले नंबर पर आपने या रब्बना, जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा या ना भी पढ़ा हो, लेकिन आज पहले नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बना सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ एक बार, दूसरी बार कोई चीज़ नहीं रिपीट करनी, कोई भी चीज़ नहीं। और एक बार तन्हाई में बैठ जाओ ना शब मेराज में, तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो खड़े ना होना। 30 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, देखें हर बंदे के पढ़ने के अंदर यानी कि अपने ऊपर वक्त लगता है। मुझे आधी मिनट लगती है, मैं हर साल पढ़ता हूँ। हो सकता है आपको इससे भी कम वक्त लग जाए, हो सकता है 10-20 सेकंड ऊपर लग जाए, लेकिन आपने अमल को पढ़ते वक्त किसी से बात नहीं करनी, ना ही अपनी तवज्जो ध्यान यहाँ वहाँ करनी है। अगर चाहते हो कि छप्पड़ फाड़ कर दौलत मिले, अगर चाहते हो दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढे जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है, तो अभी पढ़ो, अभी दौलत के ढेर। अभी अभी तुम्हारी जिंदगी में एक दाढ़ी वाला बुजुर्ग आएगा, अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, कोई मौकिल आएगा, कोई ऐसा शख्स आएगा तुम्हारी जिंदगी में जो बंद मुट्ठी तुम्हें देकर जाएगा, तुम्हारे दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा तवज्जो ध्यान से देखें, एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना करना। अब आपने तन्हाई में बैठकर, बिल्कुल तन्हाई में बैठकर आपने पहले नंबर वाला वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और या रब्बना को मेरे बताए हुए तरीके से देखें। या रब्बना जिसका मतलब है ऐ मेरे रब। क्या मतलब है? ऐ मेरे रब। अब बंदा अपने रब को तो पुकारता है, लेकिन वो मलंग बाबा ने जो तरतीब बताई है शब मेराज की, मेरे दोस्तों, मैंने जब ये अमल सुना खुदा की कसम में दीवाना हो गया। मैंने कहा ये कैसा अमल है, और जब मैंने 2 साल पहले पढ़ा, यकीन करें मैंने पढ़ा फौरी तौर पर 10 मिनट में मुझे फौरी तौर पर लाखों का फायदा हुआ। बंद मुट्ठी मेरा जानने वाला मदद करके चला गया, और उस दिन से लेके अब तक मेरे दोस्तों 2 सालों में, पिछले साल भी पढ़ा, इस साल भी पढ़ूंगा मेरे दोस्तों। देखिए, मैंने इस अमल के मौजूदात कमालात देखकर मेरी अक्ल हैरान रह गई है। देखिए, मैंने 800 से 1000 बंदों को ये अमल अपनी ज़िंदगी में दिया है, और यकीन करें पिछले साल भी मैंने अपनी एक दुखियारी बहन जानने वाली रिश्तेदार को ये अमल दिया। खुदा की कसम हिचकियाँ भरते हुए मेरे पास आई थी कि जनाब मैं मरने लगी हूँ, मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने कहा बीबी दो अल्फाज और तीसरा जुमला पढ़ ले, तेरी ज़िंदगी ना सवरे शब मेराज में तो आकर ये मेरा एड्रेस है। मेरे
मेरे मुंह पर थूक कर चली जाना। खुदा की कसम, ठीक 15 मिनट बाद इस औरत का पिछले साल अमल के पढ़ने के बाद मुझे मैसेज आया। रोती हुई कहती है, ऐ मौलाना तूने क्या चीज़ दी है, मुझे क्या वजीफ़ा दिया है, मुझे पैसों की जितनी ज़रूरत थी इससे 4 गुना ज़्यादा मुझे मिल गए। खुदा की कसम मेरी दोस्तों, मेरी अक्ल हैरान रह गई। मैंने कहा ये अमल चीज़ क्या है। आज मैंने अहद कर लिया है, मैंने कहा आज अपने बहनों भाइयों के लिए वीडियो बनाकर रहूँगा शब मेराज की। आज तमाम बहनों भाइयों को सीने का राज देकर जाऊँगा। आज तमाम बहनों भाइयों जो दुखियारे गरीब बहन भाई हैं, जो मरना चाहते हैं, जो किसी के आगे हाथ फैलाना चाहते हैं, जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, मेरे गरीब किसी भी मुश्किल में है। देखो सबसे बड़ी मुश्किल पैसों की इस वक्त है। अगर एक पैसा आपके पास आ जाए ना, सारी मुश्किलें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। एक पैसे की वजह से तू दर दर की ठोकरें खा रहा है ना मेरे गरीब ना। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तेरी जिंदगी में ना रहेगा। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। अपनी मनमानी से कुछ भी नहीं पढ़ना ना मेरे गरीब ना। ये मेरी वीडियो का स्क्रिप्ट जिसने भी चोरी किया है इससे फौरन स्ट्राइक आएगी। एक अल्फाज भी चोरी किया है वो बंदा नहीं बचेगा, याद रखिएगा। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला वजीफा मेरे दोस्तों भाई बहनों, या रब्बना, मैंने आपको जिक्र किया या रब्बना के बारे में। पहला वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तन्हाई में बैठकर आप लोग तन्हाई में बैठ गए। किसी दिन किसी वक्त किसी जगह आपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन भरोसा करते हुए दिल में वसवसा नहीं, दिल में अगर शक होगा कि पता नहीं मैंने इतने वजीफे पढ़े, मेरा तो कोई वजीफा असर ना किया, ये मामूली वजीफा नहीं है ना मेरे गरीब ना, ये बना बनाया वजीफा नहीं है, ये तेरी गुर्बत और गरीबी को चीखें निकालने के लिए काफ़ी है। ये गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है मेरे दोस्तों। इस अमल को अगर लोग देखें, इस अमल को लोग गुर्बत और गरीबी का दुश्मन भी कहते हैं। ये 3 अल्फाज गुर्बत और गरीबी के दुश्मन है। ये 3 अल्फाज पढ़ते ही पूरे मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि ये फ़कीर, ये गरीब, इसने ऐसा क्या किया, पता चलाओ क्या किया इसने कि एकदम से इसके पास दौलत का इतना बड़ा तूफान आ गया। मेरे दोस्तों लोग पूछेंगे तेरे कर्जे भी दूर, तेरी हर बीमारी तकलीफ दूर। मेरे दोस्तों खुदा पर यानी कि झूठे पर खुदा की लानत हो। ये अमल शब मेराज का ताकतवर अमल है। देखिए हफ्ते के दिन आपने पढ़ना है, चाहे रात में पढ़े, ये पूरी रात शब मेराज की लग चुकी है। कल हफ्ते का दिन है, ये तमाम चीज़ें आपने पढ़नी। देखिए एक एक जुमला यहाँ से वहाँ ना करना और दिल में शक ना रखना। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफा, पहले नंबर वाला वो खुफिया, वो मलंग बाबा का बताया हुआ खजाना आपके हवाले करने लगा हूं। अपने सीने का वो राज फी सबीलिल्लाह आपके हवाले, बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के आपके हवाले करने लगा हूं। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे दोस्तों, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए, सिर्फ अपने गरीब बहनों भाइयों की आज दुआएं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रखो अपने पास तुम्हारा लाइक। तुम्हें लगता है ना कि मैंने लाइक के लिए वीडियो बनाई है, ना मेरे गरीब ना, मुझे तुम्हारा लाइक नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दुआएं चाहिए। मुझे तुम्हारी दुआएं लग गई ना तो मेरी ज़िंदगी सवर जाएगी। मेरे लिए दुआ ज़रूर करना, ये वादा करो गरीबों को कि अपने सीने का राज तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ। अब आपने तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर मेरे गरीबों, अब आपने पहला मोजज़ाती वजीफ़ा जो कि इस अमल का सबसे बड़ा ख़जाना है, अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना को कैसे पढ़ना है, एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है। मेरे बताए हुए तरीके से अमल का पहला वजीफ़ा, जिसे पढ़ते हुए फौरी तौर पर दाढ़ी वाला तुम्हारे घर में एक बुजुर्ग दौलत फेंक कर जाएगा। अब आपने 10 मिनट में असर करने वाले इस अमल का पहला वजीफा मेरे दोस्तों या रब्बना और साथ में एक जुमला शामिल करना है। यही वो जुमला है पहले अल्फाज का। पहला अल्फाज आपने पूरा पहले समझना है, इसीलिए आपके वजीफे असर नहीं करते कि जल्दी जल्दी काटो पीटो भागो भीगो जान छुड़ाओ ना मेरे गरीब। आज जान ना छुड़ाना। आज मेरे दोस्तों एक एक वजीफा, एक एक बात समझनी है, एक एक वर्ड समझना है। आज तुझे तेरी गुर्बत और गरीबी का वास्ता ना मेरे गरीब ना, आज तुमने ये 3 अल्फाज लाजमी पढ़ने हैं, चाहे आधी रात को, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, शाम, किसी भी वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहला अल्फाज, फिर दूसरा, और जो चीज़ें बताऊंगा आपने करना है। अल्लाह पाक से मांगिए ना मांगे, बिन मांगे, सिर्फ 10 मिनट में। ये मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, दुनिया के जिस कोने में हो, 10 मिनट में इंशाअल्लाह ज़िंदगी सवर जाएगी। देखें मेरे दोस्तों, अब आपने पहले नंबर पर या रब्बना के साथ क्या पढ़ना है,
देखें या रब्बना का मतलब क्या है। ऐ मेरे रब, अब आप लोग क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कोई भी वजीफा होता है शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको सीने के राज आज पहली बार बताए जाएंगे। आज या रब्बना के साथ एक ऐसा जुमला बताने लगा हूँ जिसे पढ़ते ही मेरे दोस्तों सिर्फ आपने 11 बार पहला वजीफा पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ते ही ऐसा तमाशा होगा कि सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। पहले नंबर वाला वजीफा सिर्फ और सिर्फ 3 बार देखें, आपने हर चीज समझनी है, हर जुमला समझना है। अब आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन आपने पूरे 11 बार पढ़ना है। या रब्बना मेरी झोली भर दे, 2 बार हो गया। या रब्बना मेरी झोली भर दे, 3 बार हो गया। कितना कोई वक्त लग गया। पहला अल्फाज है ये सामने लिखे हुए 2 अल्फाज आपको दिख रहे हैं, देखें साथ में तीसरा अल्फाज, और साथ में दोस्तों दाढ़ी वाला बुजुर्ग पैसे देकर जाता है। ये इस मलंग, इंडिया के मशहूर मलंग का बताया वो अमल है शब मेराज का, जिसे पढ़ते ही जिसे लोगों ने अपनाया और लोगों की अक्ल हैरान रह गई। मलंग को बहला फुसलाकर उन्होंने, वो अल्लाह का ऐसा मलंग था जो पैसे बांटता था। लोगों ने इंक्वायरी की कि इस मलंग के पास कहां से पैसा आ रहा है, तो पता चला कि वो मलंग 2 अल्फाज पढ़ता था और कोई दाढ़ी वाला बुजुर्ग पैसे देकर जाता था। यकीन करें ये वो अल्लाह का ऐसा नेक बंदा था मलंग, अल्लाह ने इसे ये 2 अल्फाज सिखाए थे और यही अल्फाज मैं आपके हवाले करने लगा हूं मेरे दोस्तों। अगर आज अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना है तो ये 2 अल्फाज पढ़ें। पहला अल्फाज मैंने आपको बता दिया है, फिर समझ लें, फिर अपनी खोपड़ी में उतार ले मेरे दोस्तों। फिर मुझे ना कहना कि मौलवी तेरा वजीफा समझ में नहीं आया। अब आपने देखें सिर्फ 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किसी दिन आपने शब मेराज को, चाहे दिन में चाहे रात में, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, मेरे गरीबों पहले पहला वजीफ़ा, पहला अल्फाज सिर्फ 11 बार। अब वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा, जल्दी से दूसरा वजीफ़ा, दूसरा अल्फाज अल्लाह पाक का नाम है जो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तक कभी आपको वो राज नहीं बताए गए, कभी नहीं बताया मेरे दोस्तों। बड़े बुजुर्ग किसी ने भी नहीं बताया, सीने में छुपाया, मर जाएंगे, कब्र में उतर जाएंगे, लेकिन राज आप तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन आपको मेरे दोस्तों, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपको सीने के राज नहीं बताए गए, लेकिन आज अपने कलेजे का वो राज मैं आपको देखें बताने लगा हूं। दूसरा अल्फाज पढ़ते ही मेरे दोस्तों दौलत का तूफान नहीं खड़ा होगा, दौलत की आंधी तुम पर बरसेगी। जो लोग कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ कर मुझे दौलत चाहिए, तो आज तुझे छप्पड़ फाड़ कर मिलेगी इंशाअल्लाह। दूसरा अल्फाज और सारी चीजें समझनी है, एक एक जुमला समझना है मेरे दोस्तों। अब आपने पहला वजीफा 11 बार पढ़ना है, कमी पेशी ना हो। 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और 11 बार मेरे दोस्तों या रब्बना मेरी झोली भर दे पढ़ लिया। या रब्बना मेरी झोली भर दे 1 बार हो गया। ये पूरा वजीफा है, ये जुमला मेरी झोली भर दे लाजमी शामिल करना है। या रब्बना के साथ 11 बार, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं। दिन में जितनी बार चाहे इस अमल को पढ़ें, आधी मिनट के लिए तन्हाई में बैठ जाएं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, और ना भी पढ़ें तो सिर्फ 1 बार। असल तरीका यही है, 1 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और 11 बार या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे पढ़ लिया। अब दूसरा वजीफा और फिर तीसरा, और अमल कंप्लीट और अमल खत्म, और दौलत की बारिश शुरू, अमल खत्म और दौलत का तूफान शुरू। 3 अल्फाज मैंने कहा था, 3 अल्फाज। तीसरा अल्फाज मेरे दोस्तों, क़यामत तक दौलत ख़त्म ना होगी, क़यामत के दिन तक तेरे पास दौलत रहेगी। आपने देखें तीसरा अल्फाज सुन ले, 2 अल्फाज मैंने आपको बता दिए हैं ताकि तू भी आज करोड़पति बन जाए, ताकि तेरा भी नाम करोड़पति में शुमार हो जाए, ताकि आज तेरा भी नाम लिखा जाए करोड़पतियों में, ताकि तेरी भी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। तीसरा अल्फाज जिससे आज तक आपने बेशुमार बार पढ़ा, अल्लाह पाक के 2 नामों को एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है। गैबी ख़जानों की सबसे बड़ी खुफिया चाबी आज आपके हवाले करने लगा हूँ। अल्लाह पाक के 2 नाम मेरे दोस्तों आपने इस अमल के तीसरे और आखिरी नंबर पे शामिल करने हैं। जैसे ही या रब्बना मेरी झोली भर दे पढ़ लिया मेरे दोस्तों, या अल्लाहु अल मदद को पढ़ लिया, तो अब आपने तीसरे नंबर पर या गनीयु या मोगनी को पढ़ना है। कहीं पर भी सर्च कर ले, पूरी दुनिया में सर्च कर ले, या गनीयु या मोगनी से बड़ा वजीफा कोई भी नहीं है, खजानों की चाबी है। लेकिन आज
وہ راز بتایا جائے گا یا غنی یا مغنی کا۔ میرے دوستو، جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے تمہارے ذمے دولت پہنچانے کی، فرشتے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیسے دے کر جائیں گے، کسی انسان کی شکل میں، کسی اللہ کے ولی کی شکل میں غیبی موکل تمہیں ڈھونڈ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ تمہارے گھر اور غریبی کا، غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اے میرے قریب، دوسرا الفاظ آپ نے پڑھ لیا، پہلا پڑھ لیا، اب تیسرے نمبر پر یا غنی یا مغنی کے ساتھ ایک ایسا جملہ جسے فرشتے تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں، دل سے لائق ضرور بنتا ہے، سینے کا راز بتایا ہے عمل کی اجازت کے لیے۔ 3 کام لازمی کرنے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ میری نیو وظائف کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اب آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، توجہ سے، دھیان سے ایک ایک جملہ سمجھنا ہے میرے غریبوں، ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ آخری وظیفہ، دوسرا اور آخری وظیفہ، یا غنی یا مغنی، اور ساتھ میں آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے، یا غنی یا مغنی المدد، یا غنی یا مغنی المدد، یا غنی یا مغنی المدد۔ اب میرے غریبوں، آخر میں آپ نے یا غنی یا مغنی المدد، یا غنی یا مغنی المدد، یہ پورا ایک وظیفہ ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں میں سے ایک سے مدد مانگنی ہے۔ یہ تیسرا الفاظ ہے، پہلا الفاظ آپ کو بتا دیا، دوسرا بتا دیا، اب تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کے 2 نام اور اس کے ساتھ ایک جملہ المدد کا لازمی شامل کرنے۔ دیکھیں، یہ دوسرا الفاظ ہے، یہ 2 الفاظ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کتنی بار پڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے 27 رجب کو چاہے رات میں شب معراج کی پڑھیں، چاہے دن میں پڑھیں، لیکن آپ نے اس عمل کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی ان حاجتوں کے لیے، اپنی ان مرادوں کے لیے، پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، جس کے لیے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے لیکن آپ کو ناکامی ہوئی، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج 3 بار وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ تینوں چیزیں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں اور اس کے بعد دعائیں مانگیں، انشاءاللہ چند منٹوں میں مل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔